Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the appreciation of the poem The Night of the Scorpion. So first of all, let's see the format in which the poem we have to write. In the question, you will get some points based on which you have to write the appreciation. But keep in mind that you have to write the appreciation in the format of paragraph. You have to just follow these lines. Whenever you will make paragraph, remember to leave certain space from the margin and use. You have to make approximately 2 to 3 paragraphs while writing the appreciation. Your number of paragraphs can also increase depending on the points which you are following. Although you have to follow all the points to write the proper appreciation of the poem. As if you can see, point number 1 is title of the poem, then name of the poet, theme or central idea of the poem, rhyming scheme created in the poem, figure of speeches used in the poem, that is poetic devices also, special features if the poem has any, your favorite lines from the poem, and also your personal response, that is why do you like or dislike the poem. So remember students, whenever writing appreciation, majority of the times you have to focus to write the positive aspect of the poem, that is why do you like the poem that you will write. And also during the appreciation you have to praise the poem as much as you can based on the real points. So let's see the appreciation. The Night of the Scorpion. First of all, it is written by Nazim Azagil and it revolves around a short story where a mother is doing some household chores and suddenly she gets stung by a scorpion. The poem The Night of the Scorpion by Nazim Azagil revolves around the sting of a scorpion that the poet's mother experienced during a rainy night. So it was a rainy night, his mother was doing some household work in the house and suddenly a scorpion stings her. उसके बाद में क्या होता है? The poem follows the narrative style of the storytelling where an incident is narrated in a free verse having no fixed rhyme scheme. अब उसके आगे की जो कहानी है, स्टिंग होने के बाद से क्या होता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में क्या सुपरस्टिशियस इन्वॉल्व होता है, उसके फादर कैसे रिएक्ट करते हैं, एक छोटा सा नरेशन टाइप का उन्होंने यहाँ पर इंसिडेंट बताया है. एंड सिंस ही इज़ नरेटिंग एन इंसिडेंट, तो जस्ट ये पोएटिक फॉर्म में है, वेयर एल्स इसमें पोएटिक मीटर्स यानी कि राइमिंग स्कीम या राइमिंग वर्ड्स नहीं है. हेंस ये पोएम एक फ्री वर्स भी है. ऑल्दो बट पोएम में बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीचेस, पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है, जैसे कि एलिट्रेशन में आपको सारे फिगर ऑफ स्पीचेस शॉर्ट में बताते जाऊंगा किड्स. एलिट्रेशन यानी कि जब साउंड रिपीट होता है या अल्फ़ाबेट से रिपीट होते हैं, तब एक से ज़्यादा टाइम अगर रिपीट हुआ तो आप उसको क्राइटेरिया में लेकर कंसिडर कर सकते हैं एलिट्रेशन. एंटीथेसिस यानी कि थियरी और एंटी यानी कि अपोजिट. जब दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ में किसी पर्टिकुलर लाइन में आते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं. फिर आता है हाइपरबोल. किसी बात को कभी बढ़ा चढ़ा कर जब लिखा जाता है, दैट इज़ हाइपरबोल. इन्वर्जन यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विस्ट किया गया होता है. मेटाफर यानी कि एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में. ओनोमोटोपोइया यानी कि जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के साउंड को लिख कर बताया जाता है तो उसे ओनोमोटोपोइया बोलते हैं. रेपिटेशन, जब वर्ड रिपीट होता है. सिमिली यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन. तो ये कुछ सिंपल फिगर ऑफ स्पीचेस हैं जिनका यूज़ किया गया है ऑल ओवर पोएम में. एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, देखो पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ किया है जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी या फिर गिवन कोई लिविंग बींग्स की ह्यूमन बींग की क्वालिटी दी जाती है, उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. जैसे कि ये लाइन देखो, आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. तो यहाँ पे बोला है कि जो फ्लेम है वो मदर पे फीड कर रहा था, यानी कि मदर को खाने की कोशिश कर रहा था. वेयर एल्स ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है. सो ये एक पर्सोनिफिकेशन है. फीड करना किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बींग्स की. द पोएम इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ हाउ अ सन वॉचेस हेल्पलेसली एट as his mother suffers from scorpions sting. तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है पोएम. एंड पोएम में पोएट ने बताया है एक बच्चे की कहानी जो अपने मदर को देख रहा है कि वो स्कॉर्पियन से स्टिंग हो चुकी है.
हेल्पलेसली, बहुत ही ज़्यादा उसे पेन फील हो रहा है, बट फिर भी वो अपने मॉम के लिए कुछ कर नहीं सकता. द विलेजर्स blessings and curse, the holy man's chat and the rational husband's experiment cannot bring relief to the mother, poet's mother. अब जब उन्हें स्टिंग लग जाता है तो गांव के लोग ब्लेसिंग्स और कर्स देने लगते हैं. जो होली मैन होता है वो कुछ मंत्र पढ़ता है, यानी कि चैंट्स पढ़ता है. जो रैशनल लोग होते हैं, जो साइंटिफिक बातों पे यकीन करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि उनके जो फादर होते हैं वो कुछ मेडिसिनल और ट्राई करते हैं. बट इन सारे भी चीज़ों से मदर को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा होता. It shows how the behavior of a village is characterized by their illiteracy and the lack of medical facility. तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलेजेस का जो बिहेवियर था वो तो खैर चलो इलिटरेसी की वजह से था, लेकिन रूरल एरियाज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से कैसे लोग ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशियस में बिलीव करने लगते हैं. निज़िम्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ स्ट्रॉन्ग येट सिंपल स्टेटमेंट ऑन द पावर ऑफ सेल्फ अफेंसिंग लव. तो ये जो पोएम है वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि किसी से प्यार करना, यानी कि अपने मॉम डैड से प्यार करना, उनकी केयर करना, या उनके मन में हमारे लिए केयर एंड लव होना कितना ज़रूरी है. द आयरॉनिक ट्विस्ट इन द पोएम कम्स आउट व्हेन इन द एंड मदर हु सफर्ड इन साइलेंस ओपन्स हर माउथ एंड सेज. इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट कब आता है? जब पोएम में एक लाइन आता है जिसमें मदर तो बेचारी शुरू से ही चुपचाप है, उन्हें स्टंग हो जाता है, उसके बाद से वो दर्द में तड़प रही होती है, लेकिन जब उन्हें होश आता है इतने टाइम के बाद, इतना पेन फील करने के बाद, तो वो साइलेंस से अपना मुंह खोलती हैं और कहती हैं, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड. मदर बोलती हैं कि अच्छा हुआ स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, ना कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया. एंड एट लास्ट आपको बताना है कि आपको पोएम पसंद क्यों है. सो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है. कोशिश करें पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते टाइम कि किसी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक ना करें. सो यहाँ पर मैंने बताया है, येस आई लाइक द पोएम बिकॉज दिस पोएम मेंशन द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द सन. तो मुझे पोएम इसलिए पसंद आया कि इसमें कितना स्ट्रांगली बताया गया है कि एक मदर के लिए उसका सन और एक सन के लिए उसकी मदर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना दोनों में प्यार होता है. जहाँ पर एक तरफ सन अपने मम्मी को देख नहीं पाता है तड़पते हुए पेन में, दूसरी तरफ मम्मी को जैसे होश आता है, यानी कि मदर को जैसे होश आता है, वैसे ही वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही पूछती है. सो दिस वाज माय रीज़न वाई आई लाइक द पोएम. आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर जाके लाइक बटन पर हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और भी कैसे एजुकेशनल वीडियोस की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द वीडियो एट द अर्लीस्ट. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स so that you can give a small contribution towards the channel. Thanks for watching and stay tuned with the channel for more such videos.